Hello guys, welcome to Study IQ. So guys, we'll start in a minute, okay? Just give me a minute and we will start, ठीक है? So meanwhile, let other people join in and you can ask me your doubt, okay? Meanwhile, yes. Okay guys? Okay, so we'll wait for a minute, let's see. ठीक है? हो गया? ठीक है? Perfect. ठीक है? So yes, welcome to Study IQ guys. We'll start in a minute, okay? Take a minute. Hello, good evening to all. Take a minute and we'll start in a minute. Close. ठीक है? Yes. Perfect. ठीक है? Yes, okay, so give me a minute guys, we'll start, okay? 1-2 मिनट में चालू कर लेंगे. So meanwhile, if you are having any doubt from the previous lecture, then that you can let me know, ठीक है? So that we can move ahead, ठीक है? So obviously today we are going to start with the 6th chapter of the Chalcolithic culture, okay? ठीक है, so चलो, since no doubts are there, so I'll move ahead then, okay? We'll start with the chapter number 6, that is Chalcolithic culture. Okay, so till now we have seen the prehistorical phase में how the evolution of the mankind was there from the Paleolithic, Mesolithic to Neolithic age. In nutshell, obviously Paleolithic age में हमने देखा था that stone tools जो natural level पे मिलते हैं वही use करके hunting and food gathering economy was developed by human and certain sort of the community lifestyle भी जो है वो Paleolithic age में develop हुई थी. As far as Mesolithic age is concerned, then in Mesolithic age obviously it is a middle stone age. So in Mesolithic age what exactly happened was the next stage of the humanity, right? So microlith developed kiye the, that is small stone tools which were highly polished, and apart from that Mesolithic period is also important for domestication of the animal. Thereafter we move on to the Neolithic phase. The Neolithic phase में कुछ नई चीज़ें हुई, that's why it is called as a new stone age or Neolithic age. तो ये कौन सी न्यू स्टेजेस थी या फिर कौन सी नई चीज़ें थी? Then obviously agriculture was the primary of them, and apart from agriculture पॉटरी डेवलपमेंट भी न्यूलिथिक एज में चालू हुआ था. एंड वी हैड सीन दैट कॉर्ड इम्प्रेस पॉटरी जो है दैट पॉटरी बिलोंग टू द न्यूलिथिक एज. नाउ न्यूलिथिक एज से ऑनवर्ड वी विल नाउ टुडे मूव ऑन टू द चैल्कोलिथिक फेज. तो एज फार एज चैल्कोलिथिक फेज इज कंसर्न, देन इट इज अ फर्स्ट फेज वेयर बाय कॉपर बाय यूज बाय द ह्यूमन. सो कॉपर जो है that is the first metal that was used by the humans, and in India this particular phase marks the Chalcolithic phase. ओके, तो आई होप पहले वाले जो डाउट्स है उसमें कुछ रह नहीं गया होगा इसके पहले वाले जो, ठीक है, कोई डाउट तो है नहीं. सो ठीक है, चलो विल स्टार्ट. बट जाने से पहले अगेन, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 काइंड ऑफ द मटेरियल इज बिंग प्रोवाइडेड टू यू बाय माय साइड. पहले तो आपको ये पीपीटी मिलेगी एंड देयर आफ्टर जो सेकेंड टाइप ऑफ मटेरियल है, ओके, विच विल बी बेटर फॉर यू फ्रॉम द प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव. तो बेसिकली ये मतलब कीवर्ड एंड एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में आपको एनसीईआरटी के चैप्टर का समरी इज समथिंग दैट आई एम प्रोवाइडिंग, राइट. तो ये दोनों भी आपको कहाँ पे मिलेगा? तो यू विल गेट इट ऑन दिस चैनल. सो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल एंड गेट द मटेरियल दैट आई एम प्रोवाइडिंग टू यू. दोनों मिलेगा आपको, पीपीटी भी मिलेगी एंड देयर आफ्टर यू विल ऑल्सो गेट द क्रक्स मटेरियल ऑफ द एनसीईआरटी विच विल लुक लाइक दिस. तो 1-2 पेजेस का ही रहेगा ये हर एक इसमें. Okay, so this is something that you can get from the channel of ours, that is CSC with Sainil Nagare. So चलो we'll start again. कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं. तो जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हम लोगों ने कुछ पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड न्यूलिथिक लोगों के बारे में कुछ कंक्लूजन डिराइव किए थे, राइट. वैसे ही कंक्लूजन हम लोगों ने चैल्कोलिथिक पीरियड में भी डिराइव किए हैं. So what are the archaeological evidences with that we have found in the Chalcolithic age, and ये particular evidence से हम लोगों को क्या conclusion derive करने को मिले हैं, मतलब historians ने क्या conclusion derive किए हैं, यही चीज़ अभी हम लोगों को देखनी है in the Chalcolithic period.
नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी में ये सारा डाटा है नहीं, तो दिस इज़ एन एडिशनल डाटा। अगेन मैंने पहले भी बताया था कि एनसीईआरटी के बाहर का भी एडिशनल डाटा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रीलिम्स एंड मेंस दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड। ओके, तो उसमें ये डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स है। अब ये कल्चर क्या होता है, तो इंडिया एज ए एंटिटी उस ज़माने में थी नहीं। दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि भाई इंडिया था क्या उस ज़माने में, तो इंडिया नहीं था उस ज़माने में। पीपल यूज टू लिव इन अ पर्टिकुलर क्लस्टर, तो हर एक क्लस्टर जो है वो क्लस्टर जो है वो आपका डिफरेंट कल्चर ही हो जाता था। तो हर एक क्लस्टर जो आपका वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ द कल्चर हो जाता था। थोड़ा बोर्ड में प्रॉब्लम है आई गेस यहाँ पे ना, हाँ। तो हर एक क्लस्टर आपका एक कल्चर होता था। सो से फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे भी आपको नाम दिख रहा है, तो कायथा कल्चर इज देयर, अहर कल्चर इज देयर, मालवा कल्चर, जोरवे कल्चर, सावलदा कल्चर एंड रंगपुर कल्चर। तो ये छोटे छोटे टाउन्स के नाम हैं। अगर आप मॉडर्न इंडिया में देखोगे तो ये सारे जो टाउन हैं ये बहुत ही छोटे टाउन हैं, बट यहाँ पे हमें कुछ चैल्कोलिथिक सेटलमेंट मिली है, और हर एक सेटलमेंट जो है वो एक अलग कल्चर है। मतलब उन पर्टिकुलर लोगों का बाहरी दुनिया से एज सच इतना ज़्यादा कांटेक्ट है नहीं, तो उन्होंने अपना खुद का कुछ सोसाइटी, कुछ पॉलिटी, कुछ इकोनॉमी डेवलप कर लिया था, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल दिस पर्टिकुलर क्लस्टर ऑफ सेटलमेंट एज अ कल्चर। तो आपका जो कल्चर है इट इज़ नथिंग बट, बोर्ड खराब है गाइज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट। ओके, तो दिस इज नथिंग बट द क्लस्टर ऑफ तो इट इज़ नथिंग बट क्लस्टर ऑफ सेटलमेंट। तो आपका हर एक कल्चर जो होता है इज अ क्लस्टर ऑफ सेटलमेंट इन द सेंस दैट उनकी अपनी खुद की पॉलिटी, सोसाइटी एंड इकोनॉमी डेवलप होती है। तो जैसे चैल्कोलिथिक इज़ अ लार्ज कल्चर, बट चैल्कोलिथिक के इंडिया में ये सारे हमें क्लस्टर मिले हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर मिले हैं। तो कौन से कल्चर हम लोगों को मिले हैं, दैट इज़ कायथा कल्चर वी हैव गॉट, अहर बानस कल्चर इज समथिंग दैट वी हैव गॉट, देयर आफ्टर मालवा कल्चर भी हम लोगों को मिला है, फिर जोरवे कल्चर, सावलदा एंड रंगपुर कल्चर। इनके बारे में एक एक लाइन में मैंने इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया कि रफली इनकी साइट कौन सी थी। तो कायथा कल्चर वॉज इन मध्य प्रदेश, देयर आफ्टर अहर बानस जो है वो आपके राजस्थान में सिचुएटेड है। मालवा कल्चर अगर आपने देखा तो मालवा कल्चर इज बेसिकली मध्य प्रदेश राजस्थान के बाउंड्री एरिया में सिचुएटेड है। जोरवे कल्चर महाराष्ट्र का है, सावलदा कल्चर इज अगेन महाराष्ट्र का ही है, एंड देयर आफ्टर वी हैव गॉट रंगपुर एंड प्रभास कल्चर विच इज इन गुजरात। तो रफली स्पीकिंग अगर हम देखें तो एंटायर चैल्कोलिथिक पीरियड जो है वो आपका राजस्थान मॉडर्न डे, देयर आफ्टर मध्य प्रदेश एंड देयर आफ्टर महाराष्ट्र, यहीं पे सिचुएटेड है। और हमने एक चैप्टर पहले देखा था दैट इज जियोग्राफिकल सेटिंग, और उसमें हमने ये भी देखा था कि जियोग्राफी का आपके सेटलमेंट पैटर्न पे हमेशा ही एक इम्पैक्ट रहा है, राइट। तो व्हाट इज दिस इम्पैक्ट ऑन द चैल्कोलिथिक पीरियड, तो अगर ये चैल्कोलिथिक पीरियड है तो आपको चाहिए है कॉपर। विदाउट कॉपर आपका चैल्कोलिथिक पीरियड बनेगा क्या, नहीं बनेगा, बिकॉज चैल्को का मतलब ही होता है कॉपर। तो दिस इज कॉपर स्टोन एज। तो कॉपर आपको कहाँ पे मिलेगा, मॉडर्न डे राजस्थान में मिलेगा, एंड दैट्स अ मेजॉरिटी ऑफ दिस चैल्कोलिथिक सेटलमेंट जो है इंडिया के वेस्टर्न साइड में सिचुएटेड है। मैप से थोड़ा ये बेहतर आपको समझ में आएगा। तो दिस इज द रफ मैप ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। ये कोई चैल्कोलिथिक का पीरियड नहीं है, बट ये हरप्पा का मैप है। तो हरप्पा के टाइम पे यू कैन क्लियरली सी, ओके, ये इंडस रिवर है आपका बेसिकली, ओके। तो ये जो इंडस रिवर आपका जो है, तो ये वाला रिवर है, यहाँ पे ही मेजॉरिटी ऑफ द सेटलमेंट सिचुएटेड थी, एंड इसके सराउंडिंग में यू कैन सी जब हरप्पा पीरियड जब अपने पर्टिकुलर फेस में चल रहा था, उसी के साइड बाय साइड, ओके, आपका चैल्कोलिथिक पीरियड इंडिया में डेवलप्ड होने लग गया था। सो इफ़ यू सी इन दिस पर्टिकुलर मैप, ओके, आई रिक्वेस्ट यू टू ओपन अप द पीपीटी। मैंने पीपीटी मेरे ग्रुप पे पहले ही अपलोड करवा ली है, स्टार्टिंग में ही मैंने उसका लिंक दिया था, तो पीपीटी में थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। तो यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर, तो जोधपुर गणेश्वर कल्चर, अहर बानस कल्चर, कायथा कल्चर, एंड यहाँ पे नीचे सावलदा, ओके, एंड देयर आफ्टर जोरवे कल्चर। तो ये बेसिकली जो है हरप्पा के, ओके, राइट हैंड साइड में सिचुएटेड कल्चर है, एंड दिस आर बेसिकली अग्रेरियन कल्चर। अग्रेरियन कल्चर ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये लोग हरप्पा को कॉपर सप्लाई करने का काम करते थे। तो हरप्पा को कॉपर कहाँ से मिलता था, इन लोगों से मिलता था, एंड हरप्पा जो है वो टिन लेके आते थे अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान से उनको टिन मिलता था, एंड कॉपर टिन को मिक्स करके हरप्पा जो है वो अपना ब्रॉन्ज बना लेती थी, एंड दैट्स व्हाई हरप्पन एज जो है उसको आप ब्रॉन्ज एज भी बोलोगे।
तो चैल्कोलिथिक सेटलमेंट जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया में डेवलप होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो है एमर्जेंस ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन विच इज़ एन अर्बन सिविलाइजेशन। इनके अर्बन सिविलाइजेशन के लिए इनको मेटल दैट इज़ ब्रॉन्ज इंपॉर्टेंट था, एंड ब्रॉन्ज सप्लाई करने के लिए उनको कॉपर लगेगा, तो कॉपर सप्लाई करने का जो काम है वो करते थे ये चैल्कोलिथिक कल्चर के लोग। एंड दैट्स वाई राजस्थान से लेके रफली महाराष्ट्र तक यू कैन क्लियरली सी दिस चैल्कोलिथिक कल्चर जो वो धीरे धीरे डेवलप्ड होने लग गया। अल्टीमेटली दिस वाज नथिंग बट अ विलेज इकोनॉमी और अग्रेरियन इकोनॉमी, जिनका वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन वाज टू क्रिएट कॉपर and supply it to the Harappan civilization. But since they were the agrarian civilization, वो जो है basically थोड़े से backward थे as compared to the main civilization that is Harappan civilization, and that's why we are going to study about them कि exactly इनके phase में okay different चीज़ें हम लोगों को क्या क्या मिली है, and thereafter इनका जो culture जो था वो exactly कैसा था। So now let's move on to that particular aspect कि copper age के बारे में क्या क्या information हमें मिली है। तो सबसे पहले मेटल, तो कौन सा वाला मेटल जो ह्यूमैनिटी ने सबसे पहले यूज़ किया है? सो बेसिकली कॉपर इज़ द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन, एंड कॉपर जो है वो हम लोगों को चैल्कोलिथिक पीरियड में मिला है। देयर आफ्टर चैल्कोलिथिक कल्चर जो वो ऑलमोस्ट एंटायर कंट्री में डिफरेंट पीरियड्स में हम लोगों को मिले हैं, बट इनके मेन सेटलमेंट जो है वो हम लोगों को कॉन्सेंट्रेटेड मिले हैं महाराष्ट्र से लेके ऊपर राजस्थान तक। देयर आफ्टर फिर जो अर्लीस्ट सेटलमेंट जो है, जो अभी हम लोगों ने बात की थी कि राजस्थान में अहरबानस, मध्य प्रदेश में मालवा, एंड देयर आफ्टर महाराष्ट्र में दैट इज जोरवे कल्चर इज देयर, एंड देयर आफ्टर सावलदा कल्चर इज देयर, एंड उनके जो इंपॉर्टेंट साइट है जो अभी हम लोगों ने मैप में देखे थे। तो दिस इज समथिंग दैट एनसीईआरटी इज टेलिंग अस, एंड देयर आफ्टर एनसीईआरटी इज टेलिंग अस कि इनके पास हम लोगों को और क्या क्या मिला है। तो सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट है कि पॉटरी भी हम लोगों को इनसे मिली है, एंड हियर वी कैन क्लियरली सी द पॉटरी इज ऑफ ब्लैक एंड रेड वेयर। तो जो ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी है ये हरप्पा में भी हम लोगों को मिली है। तो हम लोगों ने यही कंसिडर किया है कि हरप्पा एंड देयर आफ्टर चैल्कोलिथिक लोग में जो ट्रेड होती थी, ये ट्रेड का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट मस्ट हैव बीन बार्टर सिस्टम। तो हरप्पा के लोग इन लोगों को ब्लैक एंड रेड की पॉटरी देते होंगे, एंड इन रिटर्न ये लोग जो है हरप्पा को क्या देते होंगे, तो कॉपर देते होंगे। सो स्मॉल नेसेंट मतलब एक इनिशियल लेवल का ट्रेडिंग पैटर्न जो है वो भी यहाँ पे डेवलप्ड होना चालू हो गया था, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ द ब्लैक एंड रेड वेयर दैट यू कैन क्लियरली सी ऑफ द पॉटरी। तो पूरा का पूरा एक तो रेड में होगा, पूरा का पूरा एक तो ब्लैक में होगा, या फिर ओके रेड पॉटरी एंड उसके ऊपर ब्लैक का कलर भी हो सकता है, या फिर ब्लैक पॉटरी एंड उसके ऊपर रेड कलर भी हो सकता है, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल एज अ ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी। तो ब्लैक एंड रेड वेयर जो है ये पर्टिकुलर एरिया मतलब जो पॉटरी है इट सिग्निफाइज दी हरप्पन एज, बट हरप्पा के साइड बाय साइड चलने वाला ये कल्चर है। अगर इसका रफ टाइम पीरियड देखोगे ओके देन रफ टाइम पीरियड में आपको पता चलेगा कि हरप्पा का जो मैच्योर फेस है, हरप्पा का मैच्योर फेस इज रफली 2500 से लेके 1800 बीसी के बीच में आता है, एंड उसी पर्टिकुलर पीरियड में ये सारे कल्चर भी जो है वो फ्लरिश हो रहे थे। मतलब देयर मस्ट हैव बीन एन इलेबोरेट कॉन्टैक्ट बिटवीन दिस एंड हरप्पन पीपल, एंड हरप्पन पीपल के वजह से दैट इज अर्बन सिविलाइजेशन के वजह से ही ये जो अग्रेरियन इकोनॉमी जो है वो सस्टेन हो पाई एट द आउटस्कर्ट ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे जोधपुर गणेश्वर अहरबानस कल्चर, देयर आफ्टर कायथा कल्चर यू कैन सी, एंड देयर आफ्टर इसके नीचे सावलदा एंड जोरवे कल्चर जो महाराष्ट्र वाले एरिया में जो सिचुएट हुआ था उसके बारे में। देयर आफ्टर फिर बहुत सारे टूल्स भी हम लोगों को मिले हैं यहाँ पे। ओके, तो टूल्स इन लोगों के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज बाय नाउ पॉटरी हैज़ द मेन ओरिएंटेशन। टूल्स इंपॉर्टेंट है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक के लिए, बट नियोलिथिक पीरियड ऑनवर्ड पॉटरी इंपॉर्टेंट होगी, एंड आई हैड गिवन यू एग्जांपल ऑफ इट यस्टरडे इटसेल्फ कि पॉटरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज पॉटरी इज समथिंग दैट यू कैन फाइंड इन ईच एंड एवरी हाउस होल्ड। तो पॉटरी से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में पता चलती है कि सोसाइटी में कोई स्ट्रेटिफिकेशन है क्या, सोसाइटी में रिच सेक्शन एंड देयर आफ्टर गरीब सेक्शन है क्या, सोसाइटी में लग्जोरियस पॉटरी ज़्यादा है तो प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा होगी, स्टर्डी पॉटरी अगर ज़्यादा है दैट इज़ अगर टिकाऊ वाली पॉटरी ज़्यादा है तो सोसाइटी इज़ नॉट दैट प्रॉस्परस, इट इज़ बैकवर्ड। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पॉटरी के बारे में मिलती है। पॉटरी है तो इनके पास कुछ ना कुछ तो एग्रीकल्चर भी होगा। कल के ही सेशन में हमने देखा था कि पॉटरी
इंसानों ने डेवलप क्यों की थी? बिकॉज पॉटरी डेवलप करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न था स्टोरेज। आपका जो एग्रीकल्चर साइकिल होगा वो 3 से 4 महीने ही चलेगा। इनके पास खरीफ, जायद, रबी ऐसा कोई टेक्नोलॉजी तो था नहीं। तो जब बारिश गिरेगी या फिर जब नदी का पानी आएगा तब इनका एग्रीकल्चर फ्लरिश करेगा। तो साल में एक ही सीज़न होता था इनका, तो उस सीज़न में इन्होंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लिया। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर देम वाज द स्टोरेज, एंड फॉर दैट पर्पज़ इन्होंने पॉटरी डेवलप की थी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ दी ये जो है अपने धान जो है ग्रेन्स हम लोगों को इनके पास मिले हैं। अगेन इनके पास व्हीट, राइस, बाजरा, लेंटिल, ब्लैक ग्राम सब कुछ हमें मिला है। हमने कल देखा भी था कि राइस का जो अर्लीस्ट एविडेंस है वो नियोलिथिक साइट कोल्डी वहाँ से हमको मिला है 6000 BC का। हमने ये भी देखा था कि व्हीट का जो अर्लीस्ट एविडेंस हमको मिला है वो समवेयर अराउंड 7000 BC में नियोलिथिक सेटलमेंट अगेन बट मेहरगढ़ से हम लोगों को मिला है। एंड दे वर ऑल्सो अवेयर ऑफ द कॉटन। कॉटन इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। हमने कल भी देखा था कि अर्लीस्ट कॉटन का एविडेंस इंडिया में कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ से मिला है, विच इज़ अगेन अ नियोलिथिक साइट। तो नियोलिथिक लोगों को जो एग्रेरियन प्रैक्टिस पता थी वही प्रैक्टिसेस चैल्कोलिथिक लोगों को भी पता है। एंड दैट्स वाई फिर देयर इज़ अ थियरी कि ये जो चैल्कोलिथिक सेटलमेंट है वो एक ज़माने में नियोलिथिक सेटलमेंट ही रहे होंगे। एंड नियोलिथिक से इन्होंने चैल्कोलिथिक में इवॉल्व कर लिया। एंड लेटर ऑन बहुत सारे चैल्कोलिथिक सेटलमेंट है वो अपने आप को हड़प्पन सेटलमेंट में मर्ज कर दिए थे। उनके बारे में देखेंगे वंस वी गो इनटू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। बट दिस पीपल वर अवेयर ऑफ ऑल दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। उसके बाद में फिर इनकी बेसिकली इकोनॉमी कैसी थी, तो इकोनॉमी वॉज देयर विलेज इकोनॉमी। कुछ ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी तो थी नहीं, और इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो जो था इनका वो था हड़प्पा से रिलेटेड ही। ओके, तो ये बेसिकली हड़प्पा से रिलेटेड ही सबसे बड़ा एविडेंस था इनके पास। तो हड़प्पा से रिलेटेड सबसे बड़ा एविडेंस इन द सेंस दैट हड़प्पा इनको पॉटरी देता था और ये हड़प्पा को कॉपर सप्लाई किया करते थे। तो दिस इज द बिगेस्ट एविडेंस इज समथिंग दैट वी हैव गॉट। तो वेरी क्रूड लेवल ऑफ द ट्रेड डेवलपमेंट और वेरी लो लेवल ऑफ द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट दैट वी कैन सी, एंड हेंस अल्टीमेटली वी कैन कंसिडर कि इनकी जो इकोनॉमी है वो बैकवर्ड इकोनॉमी थी, विलेज इकोनॉमी थी, और विलेज इकोनॉमी समथिंग यू कैन कंसिडर एज अ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। एंड इनके जो हाउसिंग पैटर्न है, हाउसिंग पैटर्न में भी हम लोगों को बर्न्ट ब्रिक के हाउसेस अभी तक नहीं मिले हैं। हमने देखा था हाउसिंग पैटर्न में कि पैलियोलिथिक एज में ह्यूमंस केव में रहना चालू कर दिए थे, एंड बाय द टाइम ऑफ द नियोलिथिक सेटलमेंट हम लोगों को मड ब्रिक हाउसेस मिले हैं। तो मड ब्रिक हाउसेस चैल्कोलिथिक में भी कंटिन्यू थे। ओके, तो इनके हाउसेस इज रफली, दिस इज एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, कोई ओरिजिनल हाउस हम लोगों को चैल्कोलिथिक एज का मिला नहीं है, बट दिस इज अ मड ब्रिक हाउस एंड थैच रूफ वाला हाउस। तो इसको आप थैच रूफ या फिर मड ब्रिक वाला हाउस भी कंसिडर कर सकते हो, जहाँ पे आउटर जो वॉल है दैट यू कैन कंसिडर की जो मड की बनी है, एंड ऊपर फिर झाड़ पत्ती से इन्होंने अपने आप को ढक दिया है। इसको थैच रूफ या फिर मड ब्रिक हाउसेस भी बोला जाता है, और यही इनका जनरली जो है वो सेटलमेंट पैटर्न रहा होगा। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन कि इंडिया में फिर बर्न्ट ब्रिक कहाँ से आए, जो आज भी इंडिया में यूज़ होते हैं, राइट। आप जब घर बनाओगे तो बर्न्ट ब्रिक के ही घर बनते हैं आज भी। तो ये बर्न्ट ब्रिक है, इसके सबसे पहले एविडेंस हम लोगों को हड़प्पा में मिले हैं, बट ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में थे। तो ये लोग चैल्कोलिथिक लोग जब थैच रूफ एंड आफ्टर मड ब्रिक के हाउसेस बना रहे थे, एट द सेम टाइम हड़प्पा में बर्न्ट ब्रिक के हाउसेस बन रहे थे। इट क्लियरली सिग्निफाइज कि दोनों सिविलाइजेशन अलग है, भले ही दोनों इंडिया का पार्ट है अभी के लिए, बट उस ज़माने में ये दोनों लोग जो अपने आप को अलग कंसिडर किया करते थे, बिकॉज हड़प्पा में जो टेक्नोलॉजी थी, हड़प्पा में जो डेवलपमेंट था, वो हम लोगों को इन पर्टिकुलर एरिया में नहीं दिखा है। एट द मोस्ट ट्रेड के कुछ कॉन्टैक्ट हम लोगों को दिखे जिसमें हड़प्पा इनको पॉटरी सप्लाई करता था, एंड ये लोग हड़प्पा को कॉपर सप्लाई करते थे। ओके, एंड देयर आफ्टर जो सेटलमेंट पैटर्न जो है वो जोरवे कल्चर के अराउंड जो है वो एकदम वाइड स्प्रेड बन गया। बट प्रॉब्लम वही है, जोरवे कल्चर का अगर आप रफ पीरियड देखोगे, ओके, देन जोरवे कल्चर यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर इज 1400 से 700 BC, जबकि मैंने अभी आपको बताया था कि हड़प्पा का जो मैच्योर फेस है दैट इज समवेयर अराउंड दिस वन। तो हड़प्पा का पीरियड डिक्लाइन होने के बाद वी कैन कंसिडर कि जो सेटलमेंट पैटर्न है वो इस पर्टिकुलर एरिया में बढ़ गया। वो क्यों बढ़ा, बिकॉज इफ़ यू लुक एट द मैप, ये हड़प्पा में भी बाद में हम डिस्कस करेंगे, तो हड़प्पा का जब मैच्योर फेज डिक्लाइन हो गया तो हड़प्पन सेटलमेंट अभी के पाकिस्तान से निकल के इंडिया में आना चालू हो गई थी, और इंडिया में जो चैल्कोलिथिक सेटलमेंट है वहाँ पे अभी हम लोगों को बड़े बड़े एविडेंसेस दिखे ऑफ दी हड़प्पन पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो हड़प्पा का जो फेस है
प्री हड़प्पन फेस, मैच्योर हड़प्पन फेस एंड लेट हड़प्पन फेस, ये इवोल्यूशन है। तो प्री हड़प्पन फेस में ये लोग थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में रहते थे। ये मैच्योर हड़प्पन फेस का मैप है। तो मैच्योर हड़प्पन फेस में इंडस वैली के अराउंड ही हम लोगों को सारे सेटलमेंट मिले हैं। और जैसे ही मैच्योर फेस इनका डिक्लाइन हुआ, दे शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स द मॉडर्न डे इंडिया। तो ये जो साइट्स है बेसिकली हमारी, ओके, जितनी भी चैल्कोलिथिक की साइट जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये बाद में हड़प्पा का घर बन गया था। तो दिस इज बेसिकली नथिंग बट एन इवोल्यूशन, जिसके बारे में हम लोग हड़प्पा में जाएंगे तब ज़्यादा बात करेंगे। बट अभी के लिए जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट एंड व्हाई सेटलमेंट पैटर्न इन द लेटर चैल्कोलिथिक फेज इंक्रीज, बिकॉज तब तक हड़प्पा का मैच्योर फेज डिक्लाइन हो चुका था एंड दिस पीपल स्टार्टेड टू मूव इनटू द एरिया ऑफ द चैल्कोलिथिक पीपल। एंड दैट्स वाई फिर ये वाला जो लाइन है जो एनसीईआरटी में डाल के भी रखा है कि जोरवे कल्चर के टाइम पे सेटलमेंट जो है वो बहुत स्टेबल बने एंड देयर आफ्टर वो एक्सेंचुएट भी हुए। वो इसी के वजह से हुए बिकॉज बाय दिस टाइम हड़प्पा का मूवमेंट जो है वो चैल्कोलिथिक साइट्स के तरफ बढ़ चुका था। ओके, देयर आफ्टर फिर रिलीजन। ना एज फार एज रिलीजन इज कंसर्न, देन हम लोगों को फॉर द फर्स्ट टाइम इलेबोरेट बरियल प्रैक्टिसेस यहाँ पे मिली है। और इनके जो इलेबोरेट बरियल प्रैक्टिसेस जो होती थी वो होता था अर्न बरियल। ओके, अर्न का मतलब होता है कलश। ओके, हिंदी में इसको कलश भी बोलते हैं और बहुत सारे लोकल लैंग्वेज में भी इसको कलश ही बोलते हैं। तो आज भी आपने अगर देखा होगा, देन इन इंडियन रिलीजन ऑल्सो और हिंदू रिलीजन ऑल्सो पहले क्रीमेट किया जाता है बॉडी को एंड फिर बची हुई जो अस्थिया है, दैट इज एशेस है, वो आप एक अर्न में, दैट इज कलश में भर के रखते हो एंड देयर आफ्टर उसको आप रिवर में छोड़ते हो। रिवर में इसीलिए छोड़ते हो बिकॉज आवर इज़ अ वेरी वेल प्रॉस्पर्ड अग्रेरियन इकोनॉमी, तो दैट्स वाई फिर अस्थियों का अल्टीमेटली हम लोग विसर्जन करते हैं। बट इन दिस पीरियड, चैल्कोलिथिक पीरियड में हम लोगों को दो टाइप के अर्न बरियल मिले हैं। ये जो दो टाइप के अर्न बरियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिलीजियस डेवलपमेंट। तो पहला वाला जो अर्न बरियल है जो अभी के हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उसी में मिला है, जहाँ पे पहले बॉडी को क्रीमेट किया जाता है एंड क्रीमेट करने के बाद, क्रीमेट करना मतलब जलाना, तो बॉडी को जलाने के बाद बॉडी की जो अस्थिया जो है उसको ये लोग अर्न में भरते थे और अर्न में भरने के बाद इसको जो है ये लोग दफन कर देते थे। तो हियर यू कैन सी दैट एक स्मॉल पॉट है, दिस इज जस्ट लाइक मॉडर्न डे कलश। अभी का कलश का शेप अलग होता है बट फॉर दिस पीपल दिस यूज टू बी द शेप एंड उसके अंदर जो है वो फिर यू विल गेट द लॉट्स ऑफ बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, बट कुछ कुछ बोन्स ही मिलेंगे। एंड एक सेकेंड टाइप का अर्न बरियल हम लोगों को मिला है जिसमें पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी जो है वही इन लोगों ने दफन करके रखी है। सो हियर यू कैन सी ओवर हियर, ये एक इन्फेंट है, इन्फेंट मतलब छोटा बच्चा, तो उसका पूरा का पूरा पॉट में इन्होंने बरी करके रखा है और पॉट को जो है ज़मीन के अंदर इन लोगों ने दफना दिया। तो बोथ टाइप ऑफ द प्रैक्टिसेस इज समथिंग दैट वी हैव ट्रेस टू द चैल्कोलिथिक फेज। ऑन बरियल होता था तो ऑन बरियल में पहले बॉडी जला के बची हुई अस्थियाँ ये लोग ज़मीन के अंदर दफन करते थे एंड सेकेंड कंप्लीट बॉडी बरियल इज समथिंग दैट वी हैव विटनेस। तो कंप्लीट बॉडी बरियल भी है, ऑन बरियल भी हम लोगों को मिला है। एंड जब बरियल ये लोग करते थे तो बरियल के साथ इन लोगों ने बहुत सारे डेली बेसिस पे लगने वाले जो हथियार है या फिर चीज़ें है वो दफन करके रखी है, विच अगेन शोज द बिलीफ इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। तो ये जो बिलीफ इन द नेक्स्ट वर्ल्ड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के जितने भी मॉडर्न रिलीजन है ये इसी बिलीफ पे बैठे हुए हैं या फिर इसी बिलीफ के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो ये जो बिलीफ जो है दैट इज लाइफ ऑफ द नेक्स्ट बर्थ। तो नेक्स्ट बर्थ में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये वाली जो चीज़ें हैं इसमें ये लोग भी यकीन रखते थे। दैट्स वाई फिर बरी जब करते थे लोगों को तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ें उनसे रिलेटेड ये लोग दफन कर देते थे। एंड देयर आफ्टर फिर टेराकोटा फिगरिन ऑफ द मदर गॉडेस जो है वो भी हम लोगों को यहाँ पे मिली है। तो दिस इज बेसिकली टेराकोटा। टेराकोटा इज अ टाइप ऑफ द सॉइल, तो उसका एक मदर अर्थ वाला जो इमेज है तो ये ऐसे अर्लीस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप भी माना जाता है इसको। तो अर्लीस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप उन लोगों के लिए शिवा, विष्णु, गणेश ऐसे कुछ लोग इन लोगों को पता नहीं थे। ओके, सो इन लोगों के लिए नेचुरल फोर्सेस वेर इंपॉर्टेंट। बारिश आई, इनको पता नहीं क्यों आई, तो बारिश आई तो ये लोग उसको पूजा करते थे। ग्रहण हो गया तो पता नहीं क्यों हो गया, तो उसको पूजा करेंगे। एंड दिस इज समथिंग दैट यू कॉल एज अ नेचुरल रिलीजियस प्रैक्टिसेस और नेचुरलिस्टिक रिलीजन। तो वन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेचुरलिस्टिक रिलीजन इज अ मदर गॉडेस। तो अर्थ की आपको पूजा करनी है या फिर मदर गॉडेस का आपका वर्शिप करना है, तो इसके लिए वी हैव फाउंड द टेराकोटा फिगरिन ऑफ द मदर गॉडेस। ये वाली जो टेराकोटा फिगरिन ऑफ मदर गॉडेस है
हम लोगों को नियोलिथिक एज ऑनवर्ड ही मिलना चालू हो गया है। तो अर्लीस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। एंड लेटर ऑन वी विल सी दिस इवोल्यूशन। जो रिलीजन में आज आप और मैं जो भगवानों को पूजते हैं, ये सारे भगवान गुप्ता एज ऑनवर्ड इंडिया में आए हैं। गुप्ता एज के पहले ओके दैट इज मौर्यन एज में यक्ष एंड यक्षी जो है वो भगवान हुआ करते थे। उसके पहले वैदिक एज में सर्टन भगवान के नाम है, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, जो आज ना आप पूछते हो ना हम पूछते, बट वैदिक लोग ये सारे भगवानों पे माना करते थे। एंड हड़प्पा के टाइम पे बहुत सारे अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे, जिसमें ओके कल्ट फॉलोवरशिप, नेचुरल वर्शिप, फायर वर्शिप एंड सैक्रिफिशियल वर्शिप, इसके एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं। तो हड़प्पा के पहले मतलब रफली चैल्कोलिथिक, नियोलिथिक में क्या होता था, तो मदर गॉडेस की वर्शिप के एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं। उसका मतलब नेचर वर्शिप हुआ करता था, जो नेचर में जो नेचुरल फोर्सेस है उसी का वर्शिप ये लोग किया करते थे। एंड इसीलिए फिर ये मदर गॉडेस का जो इमेज है दैट इज समथिंग दैट वी हैव डिस्कवर्ड। एंड देयर आफ्टर बुल के भी बहुत सारे हम लोगों को इमेजेस मिले हैं। तो हमने यही अल्टीमेटली कंसिडर किया है कि बुल मस्ट हैव बीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, एंड ऑब्वियसली होना भी चाहिए बिकॉज अग्रेरियन इकोनॉमी थी। अग्रेरियन इकोनॉमी में बैल का जो महत्व है वो हमेशा अच्छा होता है। अगर आज भी अगर आप विलेज लेवल पे जाओगे तो बैल से रिलेटेड बहुत सारे फेस्टिवल जो है वो विलेज इकोनॉमी में सेलिब्रेट किए जाते हैं। जलीकट्टू आपने सुना होगा, इट इज़ एसोसिएटेड विद द बुल। सिमिलरली महाराष्ट्र वाला जो रीजन है वहाँ पे बैल पोड़ा एक फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो इट सिग्निफाइज द कल्टिक वर्शिप, मतलब बुल का एक अलग कल्ट है और बुल को भगवान मानने वाला एक अलग कल्ट वर्शिप जो है वो उस टाइम पे डेवलप्ड हो रहा था। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव डिराइव्ड फ्रॉम द एविडेंसेस ऑफ द चैल्कोलिथिक पीरियड। एंड एज फार एज देयर आर्ट एंड कल्चर और आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज कंसर्न, देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाली जब बात आएंगे तो सबसे पहले तो इनमें कुछ ना कुछ तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था दैट इज आर्ट ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग। तो कॉपर को यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज टॉयज बनाने का जो हुनर है उसको आप बोलोगे कॉपर स्मेल्टिंग। ये आर्ट इनको पता थी। तो दिस इज समथिंग दैट इज न्यू फॉर द इंडिया बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम मेटल को यूज़ करने का जो नॉलेज है वो इंसानों के पास आने लग गया था। इसके पहले तो हमने देखा था सब पत्थर बेस ही इकोनॉमी चल रही है। नेचुरल पत्थर उठाओ, उसी को पॉलिश करो, उसी का इक्विपमेंट बनाओ और वही यूज़ करो। बट एज वी नो पत्थर जो है वो इतने ज़्यादा पॉलिश नहीं हो सकते या फिर उसका इस्तेमाल मेटल के जैसा हम लोग नहीं कर सकते। एंड दैट्स व्हाई मेटल जब डेवलप हुआ तो मेटल बिकेम क्वाइट सिग्निफिकेंट, एंड इसको हार्नेस करने के लिए जो स्मेल्टिंग टेक्नोलॉजी लगती है वो भी इन लोगों ने डेवलप कर ली। देयर आफ्टर इंडिया में ओके नॉट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे पहले विलेज जो है वो मेहरगढ़ है, हम लोगों ने देखा था, बट ये अभी पाकिस्तान में है। बट एज फार एज इंडिया इज कंसर्न देन अर्लीस्ट विलेज सेटलमेंट जो इंडिया में हम लोगों को मिले हैं वो चैल्कोलिथिक पीरियड में ही मिले हैं। तो प्रॉपर इंडिया एज सच अगर आप बात करोगे तो प्रॉपर इंडिया में अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ द विलेज जो है दैट इज गुजरात से लेके रफली महाराष्ट्र वाला जो एरिया वहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले विलेज सेटलमेंट मिले हैं। एंड देयर आफ्टर हम लोगों को फोर्टिफाइड विलेजेस के भी एविडेंसेस मिले हैं। फोर्टिफाइड विलेजेस मतलब इनका जो विलेज का जो आउटर एरिया था वहाँ पे हम लोगों को बड़े बड़े वॉल के स्ट्रक्चर मिले हैं, विच क्लियरली शोज़ कि ये जो विलेज इकोनॉमी इन्होंने डेवलप की थी अपने आप में झगड़ते थे। दैट्स वाई फिर डिफेंसिव वॉल इन्होंने अपने विलेज के बाहर बनाई रखी है। तो ये जो फोर्टिफाइड विलेजेस है वो हम लोगों को मध्य प्रदेश एंड देयर आफ्टर राजस्थान में कायथा एंड ईरान में हम लोगों को मिले हैं। देयर आफ्टर फिर कॉपर स्टोन, ये जो लोग हैं इन लोगों को आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं पता थी ओके और इन लोगों को ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी भी नहीं पता थी, जबकि कंटेम्प्ररी टाइम में ही हड़प्पा में ये दोनों चीज़ें जो वो फ्लरिशिंग लेवल पे डेवलप हो रही थी। सो अगेन इट क्वाइट क्लियरली सिग्निफाइज, ठीक है, कि ये वाला जो रीजन है या फिर ये वाला जो कल्चर है कंपैरेटिव टू हड़प्पन सिविलाइजेशन ये थोड़ा सा बैकवर्ड वाला कल्चर है, अग्रेरियन और विलेज वाला कल्चर है, जिनको सर्टन एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड रिलीजन पता थे, बट इनमें ये सारे एस्पेक्ट जो वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे। एंड दैट इज समथिंग दैट एनसीईआरटी इज बेसिकली टेलिंग अस। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड गाइज। आई विल गो टू द डाउट क्लियरेंस नाउ, बट थोड़ा सा डाउट क्लियरेंस पे जाने से पहले थोड़ा सा टाइम फॉर द प्रमोशन, फिर डाउट्स देंगे, फिर थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि आई एम फैकल्टी ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल एट द स्टडी IQ गाइज।
तो स्टडी IQ में आई हैव स्टार्टेड माई हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स. The first batch was launched in last week of the September. So now I'm launching the second batch of the history optional, which will start on 10th of November. एंड इसके कुछ हॉलमार्क्स बताऊंगा मैं. ओके, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो कोर्स के वो बताऊंगा. तो सबसे पहले जो है वो PPT बेस्ड लेक्चर रहेंगे. तो नाउ यू हैव सीन कि PPT बेस्ड लेक्चर जो होते हैं उससे एक विजुअल मेमोरी अच्छे से डेवलप होती है एंड यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट एंड बेसिकली मेमोराइज द फैक्चुअल डाटा इन अ क्वाइट एफिशिएंट वे. तो हम पूरा हिस्ट्री जब इस वे में पढ़ेंगे देन ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज हिस्ट्री में इट्स बेसिकली नथिंग बट फैक्चुअल एंड एनालिटिकल कॉम्बिनेशन. तो आपको फैक्ट पता होने चाहिए, उससे आप कुछ कंक्लूजन डिराइव करोगे, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं 3 टाइप का मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊंगा. सबसे पहले तो मेरे PPT का एक्सेस आपको मिलेगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट इज अ क्रक्स मटेरियल. तो जितने भी इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक जो होते हैं वो रेफरेंस बुक का जो क्रक्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि आपको सारे रेफरेंस बुक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है दैट इज़ बेसिकली हैंड रिटन नोट. तो जब मेरा लेक्चर चलते रहता है तो मेरे साथ एक बंदा बैठ के यहाँ पे नोट्स बनाता है, रनिंग नोट्स ऑफ द क्लास. तो बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत भी होती है कि सर ये मतलब रनिंग नोट्स कैसे बनाए जाए, कोई पॉइंट छूट ना जाए. तो वो वाला जो मसला है दैट इज़ ऑल्सो आई एम गोइंग टू टैकल फॉर यू. तो ये जो 3 टाइप के आपको जो मटेरियल मैं प्रोवाइड करवाऊंगा दैट विल एक्ट एज अ होलिस्टिक प्रिपरेशन मटेरियल फॉर यू. आपको उसके अलावा और कोई करने की ज़रूरत नहीं है. Next important is that whenever you are studying optional, not only optional but also GS, secondary skills are always important. Secondary skill का मतलब है पेपर हैंडलिंग कैपेबिलिटी. नॉलेज आप में कितना भी हो, अल्टीमेटली एग्जाम तो क्रैक करना है, तो पेपर हैंडलिंग कैपेबिलिटी भी आपको बिल्ड करनी पड़ेगी. तो जो पेपर हैंडलिंग कैपेबिलिटी जो है उसके लिए आई एम गोइंग टू टेक द सेपरेट आंसर राइटिंग सेशन ऑल्सो. तो पहला वाला सेशन तो मैं आज ही लूँगा, ओके, विच विल बी ओपन वन. तो एंशिएंट के लिए आई हैव प्लान फॉर 2 सेशन, बट उसमें से पहला सेशन विल बी द ओपन वन. सो इफ़ यू आर फ्रॉम द हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड एंड इफ़ यू वांट टू लर्न की आंसर राइटिंग एग्जैक्टली कैसे होनी चाहिए देन जॉइन इट. ओके, आई स्टार्ट इट अराउंड समवेयर अराउंड 7:30 और 8 o'clock. तो चालू करेंगे आज रात को. आई विल बी टेकिंग दैट आंसर राइटिंग, उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया आएगा. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, माई own experience. Okay, so I have scored more than 300 plus in history optional in 2 attempts, 17 as well as 18 का तो मैंने मार्कशीट भी आपके साथ शेयर करके रखा है इन द डेमो वीडियो. तो 300 एंड प्लस मार्क्स इज समथिंग दैट आई हैव गॉट इन द हिस्ट्री ऑप्शनल. तो आई नो हाउ टू गेट दैट मच ऑफ मार्क. तो आपको कहाँ फोकस करना है, कहाँ नहीं करना है, आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कैसे करना है, कौन सा मटेरियल रेफर करना है, कौन सा नहीं करना है. आई नो एवरीथिंग. ओके, तो आई विल बी गिविंग यू दिस एक्सपीरियंस. सो इफ़ यू आर फ्रॉम हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड और अगर आपको हिस्ट्री ऑप्शनल लेना है देन एक बार ओके हैव अ कॉन्टैक्ट विथ मी एंड इफ़ यू हैव डिसाइडेड देन यू कैन जॉइन द कोर्स. सेकेंड बैच है मिडिएवल इंडिया से चालू करेंगे ऑन 10th of November एंड यू विल बी गेटिंग ऑल दिस एस्पेक्ट और ऑल दिस मटेरियल और ऑल दिस एक्सपीरियंस जस्ट फॉर 12,500 रुपीज़ इफ़ यू यूज़ माई कोड दैट इज़ SN Live. अगर ऑफलाइन में जाओगे तो यही सारी चीज़ आपको कम से कम 50-60 हज़ार में मिलेंगी एंड ऑफलाइन में फिर आपको पता है फैकल्टी कितना ध्यान देते कितना नहीं देते हैं. सो इफ़ यू आर फ्रॉम हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड नॉट ओनली UPSC बट ऑल्सो स्टेट PCS भी अगर आप कर रहे हो तो बाय एंड लार्ज पैटर्न तो सेम ही है. तो डू फील फ्री टू जॉइन द कोर्स एंड अगर कोई डाउट रहेगा तो फिर एक बार आज शाम वाला सेशन भी एक बार देख लेना. एंड इफ़ यू आर फ्रॉम नॉन हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड देन ऑब्वियसली GS फाउंडेशन का इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको पहले ही बताया है. नेवर एवर ट्राई टू स्किप मतलब आपका जो फाउंडेशन कोर्स है उसको. आई डिड इट, अल्टीमेटली आई हैड टू रिपेंट. मेरे कम से कम पहले 2 से 3 अटैम्प्ट जो है वो चीज़ें समझने में ही चले गए. अगर लगा लेता तो वो 2-3 अटैम्प्ट पे कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली सिलेक्शन तो आ ही जाता. इंटरव्यू में गाड़ी फंसी ऑब्वियसली, बट अगर और ज़्यादा अटैम्प्ट रहते हैं एंड आई वुड हैव इम्प्रोवाइज्ड अपॉन माई सेल्फ. ओके, तो ये जो पहले 2 से 3 अटैम्प्ट जो आपके फंसते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट जो है वो UPSC में उनके फंसते हैं बिकॉज सब कुछ खुद से करने जाते हैं. नेवर डू इट ना. आपको सब कुछ अगर मार्केट में प्रोवाइडेड है, अगर आपको सारी चीज़ें अगर मिल रही है, स्पून फीड हो रहा है, देन ऑब्वियसली उसका फ़ायदा उठाना सीखो. अगर सब कुछ खुद करने जाओगे तो ऑब्वियसली होगा सिलेक्शन, बट इट विल डेफिनेटली गोइंग टू टेक टाइम एंड देन यू शॉल ऑल्सो बी हैविंग दैट एबिलिटी टू हैव दैट पेशेंस. तो ये सारी चीज़ अगर आपको नहीं चाहिए आपके साथ हो देन वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग विद द GS फाउंडेशन कोर्स एट द स्टडी IQ. अगेन ये GS है, प्री कम मेंस GS रहेगा. तो इसमें आपके प्री के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज़ बेसिकली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स प्लस GS के आपके जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है
जैसे पेपर 1 में हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड देयर आफ्टर सोसाइटी, पेपर 2 में गवर्नेंस सोशल जस्टिस एंड देयर आफ्टर आपका इंटरनल सिक्योरिटी, GS3 में ओके सॉरी इंटरनेशनल रिलेशन इन GS2, GS3 में आपको इंटरनल सिक्योरिटी इज देयर, साइंस एंड टेक इज देयर, डिजास्टर मैनेजमेंट इज देयर एंड फिर GS4 का एथिक। ये सारा जो प्रिपरेशन है हम होलिस्टिक वे में वी आर गोइंग टू कवर। इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी, आपके लिए एक डेडिकेटेड मेंबर भी असाइन रहेगा, आपको सारा मटेरियल जो इंपॉर्टेंट लेटेस्ट मटेरियल है उसका एक्सेस मिलेगा एंड देयर आफ्टर टेस्ट सीरीज इज समथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। देन अगेन आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों स्किल जो वो इसमें आपके डेवलप्ड हम लोग करेंगे। नाउ ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टेक सर्टेन हिस्ट्री के सेशन in the GS also. So if you want to study history in an elaborate way and if you want to carry out the preparation of the entire GS course, okay, then again we are giving all these things to you at a very affordable rate. You are going to start the batch on 14th of November guys. It will be helpful for both 2023 and 24 candidate. And if you want to avail this course at the discount rate, then again use the code SN live, okay, and thereafter you can purchase this course. So that will be it from my side guys. Again अगर आपको ये PPT चाहिए एंड द क्रक्स मटेरियल जो मैंने आपको दिखाया भी था वो उसका अगर आपको एक्सेस चाहिए ओके एंड आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू फॉर ऑल द चैप्टर। तो अगर आपको ये चाहिए देन डू सब्सक्राइब टू द ग्रुप दैट इज CSA विद साइनिल नागरे एंड देयर आफ्टर यू कैन अवेल द मटेरियल दैट आई एम प्रोवाइडिंग टू यू। तो थैंक यू सो मच गाइज फ्रॉम माई साइड, ठीक है। तो देयर आफ्टर आई विल बी टेकिंग द डाउट्स नाउ, ठीक है। सो जो डाउट्स रहेंगे वो पहले ख़त्म करेंगे एंड देयर आफ्टर विल स्टॉप द सेशन। तो पहले डाउट देखते हैं, ठीक है, एक एक करके। कोई डाउट है आज, ठीक है। ओके सो गुड इवनिंग। फर्स्ट कौन सा आया था, चैल्कोलिथिक या ब्रॉन्ज एज? दोनों साइड बाय साइड डेवलप हुए थे। ओके सो चैल्कोलिथिक एज वेल एज ब्रॉन्ज एज जो है अभी आपको क्लियरिफाई हो गया होगा कि दोनों साइड बाय साइड डेवलप्ड होने वाले कल्चर्स है। ओके हाँ, फैक्चुअल डाटा इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, तो एज मच फैक्चुअल डाटा आप जमा करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ओके जोरवे वॉज बिटवीन वैदिक एंड हरप्पन कल्चर। अभिनाश, ओके आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर नाउ। तो जो जोरवे कल्चर जो था दैट इज़ इन महाराष्ट्र। ओके तो अगर ये आप मैप देखोगे तो नीचे इसके नीचे महाराष्ट्र था, तो यहाँ पे कहीं पे तो सॉरी हाँ तो यहाँ पे नीचे कहीं पे तो जोरवे कल्चर जो आपका डेवलप हुआ है। ओके तो जोरवे कल्चर जो है बिटवीन वैदिक एंड हरप्पन सिविलाइजेशन, उसको आप वैसे कंसिडर भी कर सकते हो, बट बेसिकली वैदिक सिविलाइजेशन एंड देयर आफ्टर हरप्पन सिविलाइजेशन में खुद कुछ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस है। तो वो जब समझेंगे तब आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लैरिफाई होंगी। ओके यस हाँ, लाइक वी स्टिल वर्शिप काउ, काउ इज डिफरेंट, बुल इज डिफरेंट, राइट। सो काउ वर्शिप जो है उसके एविडेंसेस हम लोगों को यहाँ पे नहीं मिले हैं, हम लोगों को यहाँ पे बुल वर्शिप के एविडेंसेस मिले हैं एंड बुल इज मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्रीकल्चर। नाउ एज फार एज काउ इज कंसर्न, काउ का जो इंपॉर्टेंस है वो वैदिक कल्चर से एसोसिएटेड है। क्यों? बिकॉज काउ जो है वो वैदिक सिविलाइजेशन में एज ए यूनिट ऑफ वेल्थ था। जैसे आज आप देखोगे तो आपके लिए और मेरे लिए यूनिट ऑफ वेल्थ क्या है, तो आप रुपया कमाओगे, डॉलर कमाओगे, घर खरीदोगे, देयर आफ्टर ज़मीन खरीदोगे, कोई शेयर या फिर बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे। सो ऑल दिस थिंग्स आर यूनिट ऑफ वेल्थ फॉर यू एंड मी एंड दैट्स वाई दिस थिंग्स आर सैक्रेड फॉर अस। अगर आपको सोसाइटी में वेल्थी बनना है तो आपके पास ही यूनिट ऑफ वेल्थ होने ज़रूरी है। तो वैसे पुराने ज़माने में दैट इज़ वैदिक एज में यूनिट ऑफ वेल्थ जो होता था वो कैटल हुआ करता था, प्रिसाइजली काउ। तो काउ जो है वो इम्पोर्टेंट वैदिक लोगों के लिए है और वैदिक सिविलाइजेशन के लिए है। अभी तक वेदा आया नहीं है, वैदिक सिविलाइजेशन से पहले अग्रेरियन इकोनॉमी इंडिया में थी एंड एग्रीकल्चर में बुल इज मोर इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू काउ। ओके यस ओके MCQs द्वारा करेंगे, बट पहले मैंने आपको पहले ही बोला था कि यूपीएससी जो है वो यूजुअली हड़प्पा के आगे वाले ही पूछती है, दूसरे वाले जो स्टेट PCS एंड दूसरे वाले एग्जाम है वो यहाँ से कुछ ना कुछ तो सवाल पूछ लेते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग इट टू यू ओवर हियर। ओके सो आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। धीरे धीरे करके इसमें MCQ भी डालूंगा मैं, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड हाउ टू मेमोराइज ऑल दिस फैक्ट, देन ऑब्वियसली रिविजन इज दी ओनली की। आपको कम से कम 2 या 3 बार पढ़नी पड़ेंगी ना चीज़, आप इंटरेस्ट लेके, वो भी जैसे पॉलिटी कैसे याद रह लेता है बिकॉज लक्ष्मीकांत 5-7 बार पढ़ लेते हो आप, राइट। वैसे ही पॉलिटी याद इसी की वजह से भी रहता है बिकॉज डेली न्यूज़पेपर में भी उसी से रिलेटेड चीज़ें जो है वो चलती रहती है। सो यू लर्न ऑन अ डेली बेसिस, सो दैट्स वाई पॉलिटी के जो फैक्ट है वो आपको मेमोराइज हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री कोई डेली
डेलिब्रेशन या डिस्कशन का हिस्सा तो होता नहीं है, तो आपको थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लेके मैक्सिमम पॉसिबल रिवीजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करनी पड़ेगी, तभी जाके थोड़ी सी चीज़ें जो है वो याद रहना चालू हो जाएंगी। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर गाइज, नथिंग एल्स, और कोई डाउट नहीं है? परफेक्ट, ओके चलो, सो सिंस आई गेस नो डाउट इज देयर, आई विल गिव यू अ मिनट मोर, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा, ओके, तो आई विल गिव यू अ मिनट मोर, ठीक है? यस, एनीथिंग एल्स गाइज, और कोई अगर डाउट रहेगा देन लेट मी नो। यस, ठीक है, सो नो डाउट। Okay, so chalo, I guess no doubts are there. So guys, we'll stop the session then. We'll meet again tomorrow somewhere around 7 o'clock only. ठीक है? So thank you so much guys. We'll meet again now tomorrow. Okay, I'll be stopping the session now. Thank you so much for joining. ठीक है? Thank you guys.